सर्दी हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome all of you to our weekly Bhagavad Gita classes. Hare Krishna. Now we are doing weekly. Hare Krishna. तो बाद में आप मुझे बोलना मत, नहीं 5 साल कैसे लगते हैं? It's not my fault. So we are beginning with the 3rd chapter today. Last time we discussed about the yoga ladder. So yoga ladder now will be described in detail through chapter number 3, 4, 5 and 6. That elaboration will come here. So 3rd chapter, Srila Prabhupada titles it as Karma Yoga. Right? And 5th chapter is also Karma Yoga, but Prabhupada titles it as Karma Yoga, Action and Krishna Consciousness. So there is a little difference between these 2 chapters. It's actually progression. Hare Krishna. Double clear, vast zero. So when we begin the 3rd chapter, Hare Krishna. So कोड चेंज करना, दूसरा कोड पे डाल पीछे से, नहीं Hare Krishna, Hare Krishna. So the last verse in this 2nd chapter, 72, was Esham Brahmi Sthiti Partha Nainam Prapya Vimuyati. Right? Sthitavasyam Antakalepi Brahma Nirvanam Gacchati. That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated even at the hours of death, one can enter into the kingdom of God. And before that, in the verse number 71 and 70, it was described Shanti. One will attain peace. He will become Shanta. Right? So now, the 3rd chapter begins with Arjuna's question. And his question is very important. These first 3 verses are very, very important. Rather, first 2 verses. So let us begin. Chapter number 3, Karma Yoga, verse number 1. Yeah, somebody read the verse. Arjuna said, O Now Jana, we'll recite the verse. yes. Jayasi chet karmanaste मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तम किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. That is Arjun Vachaya. Read the translation. Arjuna said, O Janardana, O Keshava, why do you want to engage me in ghastly warfare? If you think that intelligence is better than futile work. Hare Krishna. And now begins the confusion for all of you and for Arjuna also. क्या समझ में आया आपको इसमें से? He is still asking that why should we? Yes, the question is still continuing. Why should we fight? Yes. Right?
Why do you want to engage me in ghastly warfare? That is pretty clear. But the next question, the next thing that he is saying, if you think that intelligence is better than free to work, तो इसका explanation दीजिए. Why he is saying like that? If you think that intelligence is better than free to work, yes, नीतू माता जी, हरे कृष्णा. बोले मेरे को तो पूरा बाउंसर छक्के चौके जा रहे हैं. एक्चुअली रीड करते समय वही सोची थी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है. Okay. फ्रूट वर्क यानी कि अपने कर्मों के फल. Yes, free to work यानी कि कर्मकांड. कुछ भी करके उससे कुछ फल प्राप्ति की इच्छा करना. That is free to mentality. Even in spiritual life, if you do something, bhajan, puja, and then you expect something from the Lord, that is called. But still, that is थोड़ा spiritual में गया तो थोड़ा spiritual होता है. But gross materialistic people in this world, they worship devatas and they want something in return. Or in anywhere, in any relationship, any place, if we do something for some others and expect something in return, that is called free to mentality. Free to मतलब who is one who is after fruits. कोई भी interaction या कुछ होगा तो उसके बदले में कुछ तो चाहिए मुझे. मतलब बिना कुछ मिले मैं काम नहीं कर सकता. कुछ तो चाहिए मुझे. तो संसार में तो सब लोग ऐसे ही हैं. So now the ordinary karmi or materialistic people, they want material things. And in spiritual life, devotees, they want spiritual things. But even in spiritual circle, if you go a little higher up, even to expect something in return for your devotional service, even spiritual, that is also called as fruitive. वो स्टेज हमारा नहीं आया अभी तक. हम ये नहीं सोच रहे कि भगवान इतना दो कि मैं सॉरी मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े. हाँ. Although it is good, so you may ask that Krishna, let me chant 100 rounds today. So is this good or bad? It is good. Yes, Neha Mataji, it is good or bad? It depends on what stage of life you are in. Hare Krishna. ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मैंने. Atom bomb. Yes, so this marks the beginning of our explanation, because this is not exactly Arjun is a that is his dilemma. But इसमें और भी डेप्थ है. Stage is important, the stage of life. Also, it is important for what reason we are asking, for what? I mean, to ask, let me chant, but what is the purpose behind that? To chant, after chanting, what do you want to attain? ये क्लियर होना बड़ा जरूरी होता है. Service and love for the Lord. So ये सही है. सर्विस ही मांग रहे हैं हम जपा करके. आप तो बहुत सारे आराधना करते हैं माता रानी की. Where is Amit? He's gone to China. China. His other Sorry, Amit is Amit. Yeah, another. आपके भाई का नाम क्या है? Yatin. Yatin. Where is Yatin Prabhu? I want Yatin Prabhu. I call him next time I get to Okay. call him. Because he is Mata Rani lover. I want him to, be there in our class, so that we can also get his association. Okay. Next time I call him. Again. Mata Rani lovers, they very soon become Krishna devotees. Do you know that? And then they love Krishna like anything after that. So his future is very bright. Okay, so ये सब हमें अभी डिस्कस करना है यहाँ पे कि क्या पर्पस होता है, किस लिए मांगना चाहिए, कौन से स्टेज में कितना मांगना चाहिए, राइट? बिकॉज एवरीथिंग हैज व्हाट टू डू विद द कॉन्शियसनेस. महाराज को बता रहे थे ना मेरी क्लास में, whatever he speaks is always centered around what is our consciousness, because consciousness is the only deciding factor in our either elevation or degradation. तो ये थर्ड चैप्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, पूरा इसके ऊपर ही काम चलेगा. कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस. ऑल्दो वी मे बी कीप डूइंग एवरीथिंग, जो करना करते रहेंगे हम लोग संसार में, बट इसी के ऊपर बार बार फोकस जाएगा. और जब हम बीच के अध्याय में जाएंगे, सेंट्रल 6 चैप्टर से हो गई था, 12 to 12,
then it is only about consciousness. That doesn't mean you don't do activity, but बिना consciousness के सेवा करना is almost not doing only. But he said in 3 to 6 is about consciousness, but again 7 to 12 is again. Even more deeper. तो भगवद गीता क्या है? आपकी मेंटालिटी मेरी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए दी गई है. Not to change our external circumstances. That will be there. You cannot change. Can you change? But we always have an opportunity to change our consciousness. And that's how you will evolve in your understanding of life, death, relationships, society, eventually Krishna. Right? इस तरह से. तो भगवद गीता ऐसी है. So ये सुना फिर ये पहला तो आपको पाठ समझ में आया क्या बोल रहे हो कि मैं क्यों युद्ध करूं भाई? And he is saying ghastly warfare. Ghastly warfare means it's like saying ugra karma or vikarma, sinful activity, killing so many people. And then he says if you think that intelligence is better than fruitive work, तो ये किधर कहा गया है? Intelligence is better than fruitive work. Go to 2.39. खोल दीजिए पेज 2.39. चलो 2.39. Yes. क्या कहा गया वहाँ पे? Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain its terms of working without fruitful results. O Yes. son of Pratha, Yes. when you act in such knowledge, you can free yourself from bondage of works. देखो ये भी है and then there is one more verse. दूर नहीं आवरण कर्म आवरण कर्म बुद्धि योग धनंजय. In terms of working without fruitful results, क्या कहा गया है? Working without Fruitful results. मतलब fruitful result के बिना आपको काम करना है. And then secondly he says, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. As soon as you speak of knowledge, it becomes Jnana Yoga. Yes. Knowledge and work. Arjun is trying to differentiate these two things, separate करने की कोशिश कर रहा है. वो सोच रहा है या तो काम करो या फिर शांत बैठो. क्योंकि काम करूंगा तो फ्रूटिव मेंटालिटी तो आएगा ही. Yes, नहीं तो महाराज. Are you getting what's happening here? संसार में लोग काम करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ प्राप्त करने की अदरवाइज क्यों काम करेंगे वो? और अगर मुझे ये सब झंझट में नहीं पड़ना है तो लेट मी जस्ट बी पीसफुल. छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ. I just want to remain in one cave in Himalaya. समझ में आ रहा है? What's happening? संसार में दुख और कष्ट, बंधन, ये सब झंझट बेकार चीजें ये सब यार. Let me just relax. लेकिन just relax, you need some knowledge. Why I need to relax? Somebody cannot just be peaceful without just being, I am so happy within. ऐसा बोल के होता है क्या कोई? ऐसा बोल के होता है कोई? I am so happy within. He needs some philosophical introspection and understanding why I am and how I am happy. The purpose. Whatever it is, he may define as per his understanding. क्या तो संसार में लगे रहो, कमाओ, enjoy करने की कोशिश करो, या फिर ऐसे शांत रहो. I am happy. So broadly, now here we are trying to differentiate between two paths. Path of inactivity and path of activity. Karma yoga and Jnana yoga. And karma yoga for us broadly mainly bhakti yoga. कैसे क्या हम डिस्कस करेंगे. तो अभी देखिए यहाँ इस श्लोक में एक आ गया और यहाँ पे कहते हैं आवरम कर्म. Sorry, I missed. Yeah, this one and then 2.49. You go to 49. Yeah, this is more elaborate. Even 49. क्या कहते हैं 49 में? दूरेण ही आवरण कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपणा फलहेतव. Though Dhananjay, keep all abominable activities far distant by devotional service. Actually, Prabhupada पूरा विस्तृत
खोल देते हैं। प्रभुपाद क्या कर देते, पूरा आंसर ही बता देते हैं, राइट? नाउ यू टेक इट इन द फ्लो ऑफ गीता, राइट? हम दो ट्रैक में चलेंगे। एक तो प्रभुपाद हमको क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं राइट अवे हियर। अनदर थिंग इज द ऑफ कोर्स प्रभुपाद फ्लो में भी जा रहे हैं, बट वी हैव टू लिटिल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो कहते हैं कीप ऑल अवेलेबल एक्टिविटीज बाय फार डिस्टेंस बाय डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद परफेक्ट में ट्रांसलेशन में कहते हैं बाय डिवोशनल सर्विस, बट इन श्लोका इट इज बाय बुद्धि योगा। बुद्धि योगा मींस ज्ञान, ज्ञान मार्ग। बट हमारे लिए प्रभुपाद कह रहे हैं इस तरह से ज्ञान मार्ग से आप अपने आप को अवेलेबल एक्टिविटी से दूर नहीं कर सकते। संसार से, संसार के विकर्मों से और गलत कार्यों से दूर होना है तो आपको क्या चाहिए? खाली बुद्धि से नहीं होगा, भक्ति, भक्ति लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना समरी दिया है प्रभुपाद ने इन वन लाइन, इन वन वर्स, ऑलमोस्ट समरी एंटायर भगवत गीता, जो आपको अंत में जाकर मिलेगा। अंत में जाकर कृष्ण बोलने वाले हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकेन शरणं व्रज। सब पापों से और सभी दुखों कष्टों से और गलत संस्कारों से मुक्त होना है तो मुझे शरण आओ, कृष्ण लास्ट में कहेंगे ही। प्रभुपाद यहीं से कहते हैं डू भक्ति। So basically this is section of ज्ञान कर्म योगा और ज्ञान योगा। कर्म योगी trying to mature into ज्ञान योगी, हमने जो ये वाला स्टडी किया था, राइट? बट प्रभुपाद हमारे लिए कंक्लूजन अभी से देके रखते हैं। बट राइट नाउ इन द फ्लो ऑफ गीता इट इज बाय ज्ञान योगा। सो नाउ फॉर अर्जुन टू अंडरस्टैंड, वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, अच्छा पहली बात अर्जुन क्या समझ रहा है, दूरे नहीं आवरम कर्म। आवरम कर्म मतलब क्या? अबॉमिनेबल एक्टिविटी, राइट? सो अबॉमिनेबल एक्टिविटी समझते हैं ना आप लोग? अबॉमिनेबल एक्टिविटी मतलब वर्स एक्टिविटी, बैड एक्टिविटी, बैड एक्टिविटी, नॉट एक्टिविटी। यस नीलेश टू। तो उसके अर्जुन के हिसाब से बैड एक्टिविटी क्या है राइट नाउ यहाँ पे? किलिंग हिज ओन रिलेटिव्स, वॉर, राइट? दिस वॉर बैटलफील्ड इज बैड एक्टिविटी फॉर हिम। अब देखिए ये गलत सोच रहा है अर्जुन। What he is thinking is totally absolutely wrong. Your prescribed duty as a businessman is not abominable activity. right? Although it appears, अरे मेरा टाइम ले रहा है यार चैंटिंग का, अरे मेरे को प्रोग्राम में जाने को नहीं हो रहा है, अरे मेरे को सत्संग में जाने को नहीं हो रहा है, अरे मेरे को भगवद गीता पढ़ने को नहीं हो रहा है। It is abominable activity. It appears like that. But now हमारा क्या इस संसार में जर्नी है। सो दिस चैप्टर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर नेहा माता जी। हरे कृष्णा, क्योंकि यू नो टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। नहीं सी, ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट है, इट अपीरेंटली अपीयर्स टू बी कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट? एंड दैट हैज टू बी क्लैरिफाइड। तो क्या कहते हैं, तो अर्जुन के हिसाब से गलत काम क्या है? युद्ध करना। क्या कृष्ण ये सब गलत काम में फंसा रहे हैं मेरे को, ये सब लड़ना बिड़ना, लोगों को मारना, ये सब कुछ अच्छा काम है क्या? गलत काम है ना ये। नीलेश टू, डू यू थिंक वॉर इज गुड? व्हेन देयर इज वॉर, सो मेनी पीपल आर किल्ड, सो मच लक्ष्मी ऑफ द कंट्री, पैसा पानी सब बर्बाद हो जाता है। एक वॉर अगर बड़ा हो जाए ना तो आपका कंट्री 30 साल पीछे चला जाएगा। यूक्रेन इज टोटली डिस्ट्रॉयड। क्या यूक्रेन? So many of our ISKCON कितने सारे डिवोटी थे मालूम है यूक्रेन में? Flourishing, ISKCON preaching was flourishing like anything in Ukraine. Russia and Ukraine. Russia and Ukraine. But after this Russia-Ukraine conflict, so much problem, maintaining so many temples and this and so many problems. एक मंदिर का सीढ़ी बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है जानते हैं आप? कभी बनाया अपने घर का एक सीढ़ी? एक विंडो का कांच फिक्स करना जा समझ में आएगा। It takes so much effort, Time. money, time, energy, so much. एक खिड़की लगाने के लिए सोचो, एक पूरा मंदिर बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है। तो मायापुर में हमारा मंदिर चल रहा है, बन रहा है। It is already there, no? It's already there. They always say कि अभी खुलेगा. So that has been going on since 2000. Sorry, not 2000. They earlier they said 2020 something they said. 2020 में कोरोना आ गया. Then project shut down because no finance, no money, nothing. कोरोना के टाइम में कौन डोनेशन देगा? तो बोले हमारे ये सब हालत खराब है। 2020, 21, फिर बोले 22 में खुलेगा। 22 भी गया, फिर बोले 23, फिर 24, now 25. So, what is the biggest temple in the world, right?
This is the biggest temple, yeah? Mayapur. Mayapur. So, So biggest temple, biggest money, right? Lot of funds involved. And who will donate and how much they will do? एक सीढ़ी बनाने जाओ तो समझ में आएगा. Yes, Krish, what happened? You want to build a biggest temple? Okay. आपको समझ में आ रहा है अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहाँ पे? So he is thinking. तो ये वर्स नंबर 49 भगवान ऑलरेडी बोल के गए आगे. बट अर्जुन अभी भी यही सोच रहा है. इतना सब कुछ समझाया उसको. 49 के बाद तो पूरा भक्ति योग चालू होता है, राइट? कि भक्ति करने से कितने शांत हो जाओगे आपने, मतलब इवन दो यू मे बी फाइटिंग द वॉर बट स्टिल यू विल बी पीसफुल. उसको समझाया था ऑलरेडी, बट उसको समझा नहीं. सो राइट नाउ ही इज थिंकिंग दिस अबॉमिनेबल एक्शन इज फाइटिंग द वॉर. फिर इमीडिएटली इसी श्लोक में 49 में कृष्ण बोलते हैं बुद्धो शरणम अन्विच्छ. बुद्धो शरणम अन्विच्छ मतलब या those who want to enjoy the fruits of their work are misers. फिर एक जगह बोलते हैं कि तुम अपने आप को इस चीज से दूर रखो. फिर बोलते हैं कि जो इस युद्ध का फल भोगना चाहता है वो कृपण है. अरे मैं युद्ध से दूर हो जाऊंगा तो फिर फल भोगने के लिए क्यों जाऊंगा भाई? तुम्हें कृपण कैसे हो गया अचानक? सो इट इज आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज लिसन दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. Ayurvedic treatment is better than allopathic treatment. Ayurvedic treatment is better than allopathic. so take allopathic treatment. समझ में आया? Why take allopathic? थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा. Yes. Ayurvedic is better than प्रोसेसर रीड करेगा. Ayurvedic treatment is better than allopathic. but you take allopathic treatment. What is the meaning of that? Nilesh Prabhu. बोला आज क्या है प्रसाद में? पराठा. क्या है? पराठा. इंजन स्टार्ट करो आप. Get excited. आपको स्टेटमेंट समझ में आया क्या? Let us take an example in your language. Paratha is better. Sorry. Yeah, paratha is better than chapati. But you take chapati. Benefits are more than Chapati is chapati. good for him. Right now, no good or bad. Right now, what Krishna says is good. Because chapati will be able to take you in the long run. But अरे वो सब मत सोचो. एनालॉजी को ज्यादा खींचने का नहीं. It's like rubber band. टूट जाता है. अभी मैंने एक स्टेटमेंट कह दिया. Forget about you. You don't know anything about chapati, paratha, anything. मैंने कहा कि paratha is better than chapati. Correct? But you take chapati. You take. because अभी आपको और चपाती की जरूरत है. समझो ना एक खाने वाला व्यक्ति अच्छा खासा एकदम ही इज वेरी फूडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर के एनालिसिस दूर रखो आप लोगों भी. sacrifice. वो सब दूर रखो अभी. जस्ट पार्टी में गया है एंजॉय करने. हाँ तो वो is it sacrifice? नो नॉट लॉट ऑफ सो मच पराठा पूरा बकेट भर के है. जितना चाहिए मिलेगा सबको. सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं किसी के लिए. बहुत पराठा रखा हुआ है, फिर भी आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि पराठा मत को चपाती खाओ, तो यू विल आस्क क्वेश्चन नेचुरली, राइट? Right. अरे तुम अच्छा बोला, फिर ये क्यों खाने के लिए बोल रहा है? सो नाउ आई हैव टू आंसर. सो दैट आंसर कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स, बट आप उस एंगल में मत लो आंसर को अभी. You'll ask why. तो डेफिनेटली यू विल आस्क ना, क्या बोल रहे हो उल्टा पुल्टा यार. Yes. आप बोल रहे ये अच्छा है, फिर बोलते वो ले लो. आपके कहने का तो ये कंफ्यूजन है कि नहीं? Yes. दिस इज व्हाट कंफ्यूजिंग टू अर्जुन राइट नाउ. व्हाट कृष्णा सेज, You do what, but you don't expect future results from it. या दिस इज वन पार्ट. आप युद्ध करो और युद्ध करके शांत हो जाओ. क्योंकि शांति के बारे में कितना बताया गया लास्ट चैप्टर में. शांति 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 एवरीवेयर. अभी समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? कृष्ण कह रहे हैं आप युद्ध करो, बी पीसफुल, बी फ्री फ्रॉम ऑल द कर्मा. क्योंकि अर्जुन के जो क्वेश्चंस थे, आर्गुमेंट्स फर्स्ट चैप्टर में, पाप लगेगा, ये वन ऑफ द आर्गुमेंट, Yes. राइट? Yes. तो कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करो और पाप से मुक्त हो जाओ. ये कैसे हो रहा है? लोगों को मार के कैसे पाप से मुक्त हो सकता है? लोगों को मार के कैसे शांत हो सकता है? लोगों को मार के कैसे पीसफुल हो सकता है? लोगों को मार के हाउ कैन आई बी फ्रॉम फ्रूटिव एक्टिविटीज? आप कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ अ साधका.
यही क्वेश्चन आपका है, वही क्वेश्चन उनका है, सबका है यहाँ पर. Bhagavad Gita is not just for Arjuna and Krishna, it is addressing our problems. What is our problem? Why should I chant Hare Krishna and be peaceful? Chanting itself is so difficult, it is making me not peaceful. होता है ना ऐसा? नहीं होता है? Don't say like that because you are chanting one round. When you chant 16 round, when you chant not just 16 round, when you serve in the society of the devotees, not just serve in the society of devotees, when you take diksha, when you start following four religious principles, not just that, when things go against you in your life, when you fall sick, when your business is not flourishing as per your plan, when you are chanting Hare Krishna, you are a devotee, what's happening to me? Then can you become peaceful? But Krishna is saying you will be peaceful. And that's what Arjuna's conflict. समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? आपको प्रश्न समझ में आया अर्जुन का क्या है? आपने जो एग्जांपल दिया था ना, पराठा का? नहीं, हरे कृष्णा. आयुर्वेद का और हाँ. वो हाउ जस्ट रिलेटेड. अरे सेम समझो, सेम आपको पैरेलल एग्जांपल दिया पराठा का, बिकॉज यू लाइक पराठा मोर. अभी अगर मैं कहूँ कि ISKCON is better than so and so organization, then go to so and so organization. So you will ask, अरे ISKCON को अच्छा बोल तो ISKCON में बोलो ना आने के लिए, वहाँ क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं? You can take this example in many other ways. तो इसीलिए ये अर्जुन का क्वेश्चन है. अभी देखिए सेकंड वर्स, ये आपको यहाँ पे 2.49 समझ में आया? वो कह रहे हैं दूरे नहीं आवरण कर्म. आवरण कर्म मतलब abominable activity. You keep the abominable activity far away by बुद्धि होगा. बिल्कुल. Now for Arjun, abominable activity is war. War को दूर रखो बुद्धि और ज्ञान योग से. कैसे? या तो मैं ज्ञानी बन के शांत रहूं या तो मैं युद्ध करूं. Tell me one thing, don't confuse me. So right now in the third, if you go to the second verse, yeah, first का purport हम लोग आएंगे, we'll come back. व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धि मोहे वसीव में तदेक वद निश्चितं येन श्रेयोहम अपनियम. Yeah, please read the translation. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. Yes. मिश्रण मतलब क्या मिक्स करके बता रहे हैं आप. ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, फिर बोलते हैं ये अच्छा नहीं है वो अच्छा है. What are you trying to say something? Clearly बोलो यार. हम लोग भी ऐसे कम्युनिकेशन में बोलते हैं ना, क्लियरली बोलो. से एकदम स्ट्रेट. हाँ. Don't confuse me. तो अभी अगर जाएंगे आप परपोर्ट में, फर्स्ट वर्स परपोर्ट. The Supreme Personality of Godhead Sri Krishna has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapters, right? That is in the chapter number 2. Yeah. With a view to delivering his intimate friend Arjun from the ocean of material grief, right? And the path of realization has been recommended as Buddhi Yoga or Krishna consciousness, sometimes Krishna consciousness. Yeah, ठीक है? मार्ग क्या बताया? ये सब साक्षात्कार करने का. अगर आपको जानना है कि आप शरीर नहीं आत्मा है, उसको समझने के लिए मार्ग क्या है? Not that you become ज्ञानी or study books and then you will realize. No. Bhakti Yoga. When you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When you practice bhakti, then you will realize your Atma. Not by just merely studying academically or even by just going to the jungle and trying to meditate. उससे भी समझ में नहीं आएगा. Now he says further, of course that process is there, but that is not applicable right now. फिर प्रभुपाद कहते हैं, and the path of realization has been recommended Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of the Lord Krishna. Hare Krishna. This sounds familiar? Yes. हमको ऐसा लगता है ना, हमको बहुत हो गया संसार में यार, बहुत. इवन ISKCON में आने के बाद भी हमको लगता है कभी कभी ऐसा. इवन आई फील समटाइम्स टू मच. ना सेवा करो फिर गाली खाओ, फिर चैटिंग करने के लिए समय भी नहीं मिल रहा है, फिर और बोलते हैं ये सेवा करो. फिर सेवा करने का बेनिफिट क्या है? गाली खाओ. और तो अभी कल ही हुआ था ऐसा. कल ही सुबह मैं चैटिंग करके
was a little fresh थोड़ा सा चैंटिंग करके, और हेड पुजारी आए मेरे पास, तो मैंने देखा ऐसे जनरली विल सी एम जस्ट स्माइल, ही डिडंट स्माइल, देन अगेन फिर यहाँ वहाँ घूम रहा था, फिर मिले, जब सेकंड टाइम मिला तो he just हरे कृष्णा, what do you think yourself, क्या अपने आप को क्या समझते हो तुम? बोला क्या हो गया? तो क्या हुआ? तो एक पुजारी के साथ हमारा सेवा रहता है पैर में, तो मैंने उनको बोल दिया कि कल मैं आने वाला नहीं हूँ, आई वांट टू चैंट बिकॉज आई हैव टू गो टू सम प्रोग्राम्स, यू कंटिन्यू योर सेवा। वो सखीज का ड्रेसिंग रहते हैं, ललिता विशाखा, तो मैंने बोला आप कर, एक आदमी कर सकता है, आई डिडंट इन्फॉर्म हेड पुजारी, जनरली वी जस्ट डू अपना एडजस्टमेंट सेटिंग करके निकल जाते हैं हम लोग, तुम कर लेना। हेड पुजारी वाज देयर ऑन द ऑल्टर, उनका भी टर्न था कुछ सेवा करने का, एंड ही वाज लुकिंग आफ्टर मी, बट मैं तो पहले ही सेटिंग करके बैठा था, एंड ही डिडंट नो, ही वाज इन एंजाइटी एंड सर्चिंग फॉर मी, और फिर किसी और को लगा दिया क्योंकि मैं मिला नहीं उधर, तो जब मुझे मिले बोलते मैंने बताया था, तुम बताया था तो क्या, मेरे को कौन बताएगा? दुख बनाने गए क्या Hare Krishna. So what happens is, so when you face such situations, then you think, 2 घंटा चैटिंग करके बैठा हूँ अभी मैं, this is the result of my chanting, and it was not intentional कि मैंने intentionally इनको ऐसा प्रॉब्लम देने के लिए किया है, it just happened. तो वो थोड़ा softly बोल सकते थे, but it was heavy, early in the morning, 7 o'clock. So that's why when you come across the situations, then what happened? You think that let me go to some secluded, बहुत हो गया यार, वृंदावन जाके मैं अपना जप करता हूँ चुपचाप, let me go to Govardhan and chant 64 rounds and just be peaceful. हो सकता है क्या ऐसा? Hare Krishna. So then Prabhupada says here further, but without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place, where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence and spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and practice of penances and austerity at a secluded place. Hare Krishna. ये होता है। तो अगर कृष्ण कह रहे हैं कि देखो संसार में ऐसे कितने, कृष्ण ने वेदों में कहा है, कृष्ण ने ऑलरेडी अर्जुन को कि कर्म लगता है, बंधन होता है, संसार में कष्ट है, क्लेश है, तो अर्जुन सोच रहे हैं जाने दो ना यार, ये सब क्या करने का अपने आप, मैं मेरा आत्मा का उद्धार करूं या दुनिया का उद्धार करूं। Now here comes the principle of devotional service, because bhakti is not that you do for yourself. Bhakti you do for Krishna and for devotees. Then you get bhakti. ये तो कई बार हम लोग ऐसे सोचते रहते हैं, मेरा चैंटिंग, मेरा सेवा, मेरा सब कुछ, मेरा मेरा मेरा, मतलब आप अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, जो बाहर थे वैसे इधर हैं। बाहर आप लोग सोचते थे मेरा मूवी, मेरा फूड, मेरा घर, मेरा खाना, मेरा नौकरी, मेरा फ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, that consciousness was there. Even after coming to bhakti, if it's still मेरा सब कुछ, मेरा chanting, मेरा सब कुछ होना चाहिए, then your consciousness has not changed, even though you are chanting Hare Krishna. That means you are really missing for what you are chanting. यहाँ हम आए हैं केवल सेवा देने के लिए, that's it. और सेवा देते देते हमको साथ में chanting भी करना है, because chanting is the one thing that will purify our consciousness, and eventually we have to chant only. But for what? For pleasure of Krishna. Not for your pleasure. इसलिए कभी कभी डिवोटी से क्वेश्चन पूछते हैं, चैंटिंग में मजा नहीं आ रहा है। चैंटिंग मजा आने के लिए नहीं किया जाता है, चैंटिंग मजे के लिए नहीं किया जाता है, चैंटिंग किसके लिए किया जाता है? Yes. When you understand this principle, then you get the pleasure. अच्छा, घर में सेवा किसके लिए किया जाता है? You serve your kids and other family members, right? किसके लिए सेवा करते हैं आप? आनंद पाने के लिए। अच्छा, तो आनंद मिलेगा ही नहीं, राइट? बोलेंगे यार पक गया, पिछले 25 साल से घर में सब ये सब घर गृहस्थी के काम काज करके थक गया हूँ मैं, नहीं करना है अभी कल से, राइट? बट आपको करना है। You can't renounce or see. Try to understand this principle in your life. You can't retire also, and you can't be artificially peaceful in that situation also.
आई कांट से, अगर वो मुझे गाली देके गए पुजारी तो मैं बोल नहीं सकता, गाली मतलब स्पिरिचुअल, आई कांट से, फिर भी मैं पीसफुल हूँ, डजंट हैपन, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स राइट, वी हैव इमोशंस, वी फील, दुख हुआ मुझे, एंड वी फील, बराबर है कि नहीं? ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे प्रभु जी तो चैंटिंग करते तो उनको कुछ नहीं लगना चाहिए ना, we are sentient human beings, we have emotions, right? So अर्जुन के लिए ये डिलेमा है, और अर्जुन सोच रहा है कि यार ये सब छोड़ दो ना, क्या करने का अपने को, संसार झंझट से दुनियादारी, शांति से अपना भजन करो और मुक्त हो जाओ संसार से। मतलब आपको समझ में नहीं आया अभी तक, और ऐसे आप मुक्त हो भी नहीं सकते। Even if you go to the secluded place and start chanting, the purification has not yet happened. और ये पूरा सेक्शन इसी के ऊपर जाएगा, purification of the mind, purification of the mind. Unless we are purified, we cannot actually chant continuously. 16 माला तो compulsory है, but beyond 16, if you want to chant 40, 50, 60, 100 rounds, it really requires purification. Otherwise, you cannot continue for long. And even if you continue, क्या होता है कि अब माला करते करते अगर आपको कोई बोल रहा है प्रभु जी एक सेवा है करेंगे क्या, नहीं मेरा माला बाकी है, अभी कितना माला बाकी है, नाउ 51st round is going on, 14 more to make it 64, I can't do this seva. So you are missing the point. Your chanting is for what? You are chanting, you are praying and asking सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। चैंटिंग मतलब क्या? हरे कृष्णा सेवा दो, राधा रानी कृष्ण सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। और जो सेवा तो क्या बोलते हैं, मतलब चैंटिंग किसके लिए कर रहे हैं आप? सो कॉल्ड पीसफुल लाइफ के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो चैंटिंग बेकार है, दैट चैंटिंग विल डेफिनेटली गिव यू सम क्रेडिट्स एंड बेनिफिट, बट स्टिल यू आर इन मटेरियल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज नॉट yet changed, although it is in the process। ये चैंटिंग करते करते भी प्यूरिफाई होगा, नहीं ऐसा नहीं, बट इतना टाइम क्यों लगाया? और इसके बीच में ऑफेंसेस भी हो सकते हैं ना हमसे। क्या होता है फिर कोई आएगा कुछ बोलेगा, आप गाली दे देंगे, क्या समझते हो अपने आप को? जानते हो मैं कितना चैंटिंग करता हूँ, तो आपने अगर कुछ बोल दिया तो यू गेट द वैष्णव अपराध। And when you displease the devotees, that's how your chanting start going down again. One question. But in the second chapter, Krishna had already mentioned when you do your work, you don't expect any fruitive results from it, and there are 2-3 things which he had explained, which you are going to do your karma, you should not accept this. And why again the question is, what other confusion is there now? उसको नहीं समझाना इसलिए तो पूछ रहे हैं ना। He didn't understand. Actually, he understood, but हमारे लिए पूछ रहे हैं वापस to clarify the matter precisely। क्योंकि क्या है, देखिए, this is the mentality of a साधका। प्रॉपर कह रहे हैं ना, any newcomer देखिए, ये सब आध्यात्मिक संस्थाओं में कौन आता है भाई? कौन आता है आध्यात्मिक संस्थाओं में? जो संसार में पिटा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है, but many of them in this category। ऐसे भी लोग हैं जो संसार में सब कुछ पाए हैं, सब कुछ आनंद में, लेकिन they want something more in life, थोड़ा रस नहीं है, तो वो आते हैं भक्ति करके, they become even more happy। But many people in this age right now in Kali Yuga are those who are badly beaten by material energy। They get frustrated with life and they want to come to आध्यात्मिक spiritual organization, and they feel that यहाँ आने के बाद यहाँ पे तो शांति है यार, यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे कोई भी ऊंच नीच का ये नहीं है। But then apparently you may come across some situation where एक डिवोटी उसको अंदर एंट्री दे दिया, बोला जाओ तुम लेक्चर में बैठो, तुम्हारे लिए स्पेशल सीट है। दूसरा आया, मैंने नोटिस किया, हाँ, फिर हम लोगों को ऊपर बैठा बाकी सब इधर बैठा, हाँ, तो वहाँ का फिर नीचे बैठता होगा अपने गाँव में, लेकिन यहाँ पे ऊपर बैठता। It doesn't matter where you sit. It's a purpose that you come for, and you enjoy that purpose. तो वो कुर्सी में जो बैठते हैं उधर ना, टेम्पल हॉल में अभी भी महाराज का जब लेक्चर चलता है, there are some few chairs reserved for the senior counselors because they cannot just be with this young youth. They can't. I see, especially film. Yeah, this is instruction by Maharaj only. Keep some chairs for counselors, senior people. No, they are not counselors. Okay? Foreigners. You used to say they are Foreigners. Yes, foreigners, they are a special category. Why? Because ordinarily they don't come to temple.
somehow they come. We should give them good treatment so that they come more closer to our culture and accept it. अगर मंदिर में आए, देखो, this is all under the category of preaching strategies. कोई VIP आएगा, आप उसको अगर ठीक से ट्रीट नहीं करोगे, तो आप बोलोगे ये क्या है फिर मंदिर में? थोड़ी there is equality. अरे try to understand. This person will not come to temple. Somehow he has come, and it is our duty to give him good treatment because he wants that. उसकी जरूरत है वो, समझे कि नहीं आप? Different people, they have different needs, and we have to help them in that way so that they come more closer to Krishna. तो आपको बुद्धिमान होना चाहिए कि अगर मुझे चेयर नहीं मिला तो मैं नीचे बैठ सकता हूँ, I am okay. Why should I look for that chair? I am just giving an example. समझे कि नहीं आप? तो कैसा होता है कि ये ऐसा बहुत चलता है, VIP, नॉन VIP, ये वो बहुत सारी चीजें, बट ये सब प्रीचिंग का पार्ट है भैया। वो आया है, समझो अभी चीफ मिनिस्टर आएगा महाराष्ट्र का, आप उसको बोलेंगे क्या ये तो उधर बैठ रहे जा, हरे कृष्ण, यू कांट से बिकॉज ही वांट्स दैट, नॉट दैट हमको देना ही चाहिए, बट उसको चाहिए, उसको नहीं देंगे तो बेचारा ही विल बी मिजरेबल एंड ही विल नॉट कम ओनली। And if chief minister comes, उसको देख के 50 लोग आएंगे पीछे मंदिर में, क्योंकि क्या होता है समाज ऐसा है कि यदि आचरित श्रेष्ठ, जो समाज में बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर, पॉपुलर लोग हैं, वो जो करेंगे बाकी जनता फॉलो करते हैं। कल अगर समझो आज कौन है पता नहीं कौन है क्रिकेटर, कौन है विराट कोहली, अगर इस्कॉन टेंपल में आ जाएगा तो सब लोग बोलेंगे अरे विराट कोहली ट्रेंडिंग, इस्कॉन का नाम ऊपर जाएगा ना, सूरज यादव, हाँ, बट सूर्य कुमार यादव, नॉट सूरज यादव। आई एम मोर अपडेटेड। यस, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सब जो फैक्टर्स हैं, these are just for preaching purpose, but within our heart, we want you only, not chief minister, because he will not chant Hare Krishna. We want Nilesh Prabhu, but right now for some time, एक occasion के लिए उसको आगे कर दिया, but we love you, you only, right? Okay, so ये clear, आपको clear हो गया ये क्वेश्चन यहाँ पे? तो इसलिए प्रॉपर में बार-बार कह रहे हैं। In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. हरे कृष्ण। तो ऐसा संसार में बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, संसार को त्यागना चाहते हैं, घरदार के, गृहस्थी के कामकाज छोड़ देना चाहते हैं अध्यात्म के नाम पे, समझे कि नहीं? They want to expertly avoid, ये सब हमारा काम नहीं है। तो ये आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपका हार्ट sufficiently purified हो गया, then only you can take to this stage of life where you can go to Vrindavan and chant the 64 rounds, not suddenly, prematurely, right? इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, but as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained Karma Yoga, or work in Krishna consciousness, in this third chapter. And then second, verse के purport में प्रभुपाद कहते हैं, in the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desires, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. क्योंकि एक साथ बहुत अगर देंगे आपको तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, थोड़ा कंफ्यूज हो भी गए होंगे आप लोग। कर्म, ज्ञान, भक्ति सब कुछ एक साथ दे दिया भाई, थोड़ा अभी इसको थोड़ा सेपरेट करके बताओ विस्तार से। टेल मी सिस्टमैटिकली वन बाय वन। ऑल्दो हमारे लिए प्रभुपाद ने पर्पस में क्लियर करके दिया, तो वी आर ऑलमोस्ट क्लियर कि क्या चीज है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट? एंड देन प्रभुपाद सेड दिस वाज a more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. See, Arjun therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. See, again, although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his question, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad Gita. Right? इस तरह से. Yes, any questions so far? We still have 20 minutes. कोई प्रश्न अभी तक? Yes, नेहा माता जी. नेहा माता जी को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिला.
हरे कृष्ण। So आपको मैं 4 चीजें लिख के दूंगा, just write down. So अर्जुन, भगवान ने कितने मार्ग दिए हैं अर्जुन को, अर्जुन क्या सोच रहे हैं? So Krishna has talked about 4 paths or 4 options. Number 1, vikarma. Vikarma is sinful activity, right? कृष्ण ने भगवान ने ये दूसरे अध्याय में बताया था कि विकर्म का मार्ग होता है जिससे पाप होता है, राइट? दैट इज विकर्म, दैट इज सिंफुल एक्टिविटी. सेकंड, कृष्ण हैज टोल्ड कर्म. कर्म यानी कि कर्मकांड, बेसिकली कर्मकांड का मार्ग. देवताओं की पूजा करो, अपने को जो चाहिए वो ले लो और खुश रहो संसार में. अपेरेंटली खुश तो नहीं रहने वाला. तो सेकंड मार्ग इज कर्म या फिर कर्म कांड. तो कर्म के अपोजिट क्या होता है? विकर्म होता है. तो ऊपर दिया है, राइट? कर्म विकर्म. देन थर्ड पाथ ही हैज मेंशन इज निष्काम कर्म, वर्क विदाउट फ्रूटिव एक्टिविटीज. निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, वर्क विदाउट फ्रूटिव एक्टिविटीज बाय यूज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि. क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करके निष्काम हो सकता है ना. क्योंकि जानेगा संसार में कितने बंधन है, संसार हमें बंधन में डाल देता है, चीजों से आसक्त करता है. तो ये बुद्धि है ना. विद इंटेलिजेंस, विद निष्काम, कोई भी काम करोगे, डोंट डिजायर एनीथिंग, जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग. बिकॉज कुछ अगर इच्छा करोगे उसको भोगने की या पाने की, तो अटैच हो जाओगे उससे. अटैच हो जाओगे, यू बिकम मिजरेबल, राइट? किसी चीज से आसक्ति होगा तो उससे तकलीफ होगा ना. क्योंकि या तो वो चीज चली जाएगी, आप चले जाओगे. एंड ड्यूरिंग द कोर्स आल्सो, व्हेन यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, दैट आइटम और particular thing will give you problem, because वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना. हरे कृष्ण. The person with whom you are living, he will not do what exactly you want. वो exactly उसका opposite करेगा कई बार.